Hello student, today we are going to learn about memory management. Chapter number first है आपका chapter name the computer system. Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM or permanently like ROM. Memory devices utilize integrated circuits and are used by operating system, software and hardware. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करती है, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो डेटा परमानेंटली सेव करने के लिए हमारा रोम हो, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह हमारे सेकेंडरी डिवाइस में आते हैं वो देखेंगे। आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल आपको बताया गया किस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं, किस तरह से मेमोरी वर्क करती है, किस तरह से इनपुट सिस्टम में जाता है और किस तरह से आउटपुट आपका वापस आता है। छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं पहले हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट की, फिर छोटी सी वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। इनपुट एनी इंफॉर्मेशन और डेटा सेंड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड इनपुट, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो कि सिस्टम को एज ए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उनको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट और इनपुट यूजर इज सेंड टू अ कंप्यूटर यूजिंग एज एन इनपुट डिवाइस, ये हमारे यूजर के थ्रू इनपुट डिवाइस से दिया जाता है। प्रोसेस, अ प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड डिस्कशंस इन्वॉल्व इन द वे वर्क इज कंप्लीटेड। मीन्स प्रोसेस क्या होती है कि स्टेप की सीरीज होती है जिससे कि हमारा वर्क कंप्लीट किया जाता है। आउटपुट एनी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोसेस्ड बाय एंड सेंड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कंसिडर्ड आउटपुट। मीन्स सिस्टम से जो भी हमारा रिजल्ट हमें मिलता है, यानी कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आउटपुट कहलाती है हमारी। चलिए अब हम इसके आगे वीडियो देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। Hello, in this video, we are going to understand how computers work. We have already learned that computer is an electronic device which processes instructions given by us. For example, you use your mouse to draw or use your keyboard to write mails on the computer. You can then ask your computer to print the amazing drawing you made on the computer or command it to send the email to your friend. So the computer takes in some input, does some processing on it, and then gives some output. This is called as IPO cycle or input process output cycle. Let's understand each of them. First is input. It is responsible for providing some information or instruction to the computer. It can be through mouse, keyboard, or even voice command through your speaker. Input is a combination of data and instruction. For example, you given some numbers and ask the computer to do some mathematical calculations on it. Big banks, schools, business give even large amount of data to computers for processing, like processing exam results, money transfer, etc. All of these are input to the computer. Once computer receives the input, it does the processing on it. This is the responsibility of CPU or Central Processing Unit to do the work as per your instructions. A CPU has three main components. First is ALU or Arithmetic and Logical Unit, which is responsible to carry out arithmetic and logical instructions. Second is CU or Control Unit, which controls the sequence of instructions given by us. Third are some registers of fast memory where ALU stores its values while doing its calculation. CPU also works with main memory, also called as RAM or random access memory, which temporarily stores your instructions and data while processing. Once the processing is done, the computer gives the output, which could be displayed on your screen or monitor, or it could be printed on paper or as music on your speaker. Thus, the computer follows this whole cycle of taking in input, processing it, and giving the output, which is called as IPO cycle. तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटिंग सिस्टम का एक सबसे आवश्यक एलिमेंट है, क्योंकि इसके बिना अगर हम यूज़ करेंगे तो वो सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर मेमोरी मेनली टू टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी और रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रैम क्या होती है।
रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी में जो है वो प्रोग्राम को हम अपने थोड़े ही टाइम के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी तब तक ही वर्क करेगी जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा। कंप्यूटर को ऑफ करते ही रैम में जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कंप्यूटर के ऑन रहने पर प्रोसेसर रैम में स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही कार्य करता है। इस मेमोरी को यानी कि रैम को हम रीड राइट मेमोरी या मुख्य मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेसर पढ़ भी लेता है और उसको चेंज भी कर सकता है। रैम को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डी रैम और एस रैम। ठीक है, डी रैम को हम डायनेमिक रैम, एस रैम को हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं डी रैम क्या होती है। डी रैम जो है उसका मतलब होता है डायनेमिक। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी रैम पर 10 आंकड़े यानी कि 10 डेटा स्टोर करा दी और उनके बीच से कोई भी रैंडमली 2 डेटा निकाल लिए, तो उसके बाद जो भी आंकड़े यानी कि डेटा बचेंगे वो जो भी रिक्त स्थान यानी कि खाली प्लेस होगा उसको भर देगा और एक दूसरे से मिल जाएंगे सही से। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। और एस रैम क्या होती है? एस रैम में जो भी हमने डेटा दिया वो एक बार जो भी दिया है वो हमेशा स्टोर रहेगा। अगर हम उसमें से कोई भी डेटा निकालेंगे, रैंडमली कुछ भी निकालेंगे, तो वो खिसक कर आपस में नहीं आएंगे जब तक कि हम उस मेमोरी को पूरी तरह से वॉश नहीं करेंगे। जैसे कि एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो अभी हमने जान लिया रैम क्या होती है। अब हम जानेंगे रोम क्या होती है। रोम को रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। ये मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तब भी इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर रहेंगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। बायोस नाम की एक प्रोग्राम है जिसको रोम का एग्जांपल बोलते हैं, जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी सभी इनपुट युक्तियों की जांच करने के लिए और कंट्रोल करने का काम करता है। रैम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रोम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो पी रोम क्या होता है? पी रोम जो है वो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम खुद से किया जा सकता है, मतलब यूज़र खुद से बना सकता है, और एक बार प्रयोग किए जाने के बाद इसमें डेटा को निर्देश को हम नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद ई पी रोम क्या होती है? ई पी रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं हम। इसमें स्टोर प्रोग्राम जो भी है उसको परावैज्ञानिक किरणों के माध्यम से हम मिटा सकते हैं और इसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। ई पी रोम क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ई पी रोम जो होती है वो स्टोर डेटा को, प्रोग्राम को मिटाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टूल की आवश्यकता नहीं होती है। कमांड्स देते हैं हम कंप्यूटर में और वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स से ही प्रोग्राम को डिलीट करके उसको ठीक ठाक कर देती है। सो अभी हमने जाना कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या वर्क है कंप्यूटर के अंदर। देखिए सीपीयू के अंदर 2 मेजर पार्ट होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम यह रहता है कि हमारे प्रोग्राम के पूरे इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी एग्जीक्यूट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन होंगे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसे एएलयू के द्वारा एग्जीक्यूट कराना, फिर वो रिजल्ट जाके मेन मेमोरी में राइट कर देना, यह कंट्रोल यूनिट का काम है। उसका काम क्या है कंट्रोल यूनिट का? कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूट कराना और रिजल्ट फिर उसमें राइट कराना। और दूसरा बात है, तो ये कंट्रोल यूनिट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाकी के जितने भी चिप्स है इसके अंदर जो भी है, तो सब डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, सिग्नल्स को जनरेट करके। फॉर एग्जांपल कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना है तो उसे क्या चाहिए, कैसा फेच करेगा? उसे एक डेटा बस चाहिए। डेटा बस के द्वारा वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट तक आता है। वो डेटा बस को कि जब कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, कि रीड कर रहा है, उस वक्त दूसरे डिवाइसेस वो कंट्रोल बस को रीड नहीं करना, वो एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पहले है ना सिग्नल को जनरेट करके पूरे को पास करेगा कि पूरे डिवाइसेस समझ जाएंगे कि कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है। ऐसा पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा सिग्नल्स को प्रोवाइड करके। और एएलयू का काम यह है कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट से फेच किया हुआ इंस्ट्रक्शंस एएलयू के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं।
अब इसमें से ये यूनिट है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट भी है। इनपुट यूनिट से हमेशा डेटा रीड होता है, आउटपुट को डेटा हमेशा राइट होता है, जाता है, मेन मेमोरी से रीड भी और राइट भी होता है। अब देख सकते हैं क्लियर, आपको नोट्स भी दिया हूं मैं, ये सिर्फ फंडामेंटल्स है जो बेसिक स्टूडेंट के लिए है। ये सीपीयू इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसे हार्ट, कंप्यूटर को हार्ट बोलते हैं सीपीयू को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग्स। ये पूरा इसका रिस्पॉन्सिबल है पूरे डिवाइस को कंट्रोल करना और ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसका काम है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या पढ़े थे हम? कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। रैम से इंस्ट्रक्शन को लेके एग्जीक्यूट कराना उसका काम है, दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करना भी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। यह है अर्थमेटिक ऑपरेशन का। थैंक यू। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का लेआउट देखने में एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह लगता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज को प्रोवाइड किया गया है कुछ एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कीबोर्ड कई साइज में आते हैं, 84 कीज, 101, 102 कीज, 104 या फिर 108 कीज। आजकल मार्केट में जो ज्यादातर कीबोर्ड्स मिलते हैं वो 104 या 108 कीज वाले होते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सेकंड है माउस। माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में एक व्हील होता है जो कि स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में किया जाता है। कंप्यूटर में ये आपको अलग से लगाना होता है, जबकि लैपटॉप में ये इनबिल्ट होता है और आप अलग से भी लगा सकते हैं। थर्ड है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर की स्क्रीन पर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम्स खेलने में किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं तो उसके लिए जॉयस्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। फोर्थ है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह से काम करता है। स्कैनर सोर्स से इमेजेस को कैप्चर करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्क में स्टोर कर देता है। इसके बाद उन इमेजेस को एडिट किया जा सकता है और उनको प्रिंट भी किया जा सकता है। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। फिफ्थ है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को स्टोर करता है एक डिजिटल फॉर्म में। हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारी वॉइस को माइक के जरिए कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। सिक्स्थ है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यानी MICR। MICR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि ज्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल की जाती है। चेक पर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उन्हें रीड करने का इस्तेमाल यही MICR मशीन करती है। तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। सेवेंथ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पेपर पर जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं ये उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उनको सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर को आमतौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो कहा जाता है। ये कंप्यूटर का सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसको ये एक स्क्रीन पर शो करता है। मॉनिटर के जरिए हमें पता चलता रहता है कि हम कंप्यूटर में क्या काम कर रहे हैं और कंप्यूटर उस काम का एक आउटपुट हमारे सामने शो करता है स्क्रीन पर। सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। जिस इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटर पर देख रहे हैं या जो हमने अपने कंप्यूटर में तैयार की है उसको हम प्रिंटर की हेल्प से एक पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दे रहा है, तो इसलिए प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड है स्पीकर्स। स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर इसके जरिए से हमें वॉइस का आउटपुट देता है। इसके अलावा और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं। बस आपको यही समझना है कि कंप्यूटर में डेटा को जिन डिवाइसेस के जरिए इनपुट किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं और कंप्यूटर से डेटा को जिन डिवाइसेस के जरिए आउटपुट किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। करने जा रहे हैं
नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बाई यानी कि 2, यानी कि इसमें कोई भी हम लोग संख्या लिखें उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे, 0 और 1। जैसे कि बाइनरी में ये एक संख्या है 10101111, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 0 और 1 ये 2 ही डिजिट आपको देखने को मिलेंगे, ये 01010। ऐसी एक और संख्या है 110111, इसमें भी आपको 2 ही डिजिट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आप कोई सी भी संख्या लिखे बाइनरी में, आप सिर्फ 0 और 1 की मदद से ही उसे लिखते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब चलते हैं हम डेसिमल नंबर की सिस्टम की तरफ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, और जो संख्या आप लिखते हैं वो 0 और 9 के डिजिट से ही लिखते हैं। जैसे कि 125, तो इसमें 1, 2 और 5 का आपने डिजिट का उपयोग किया है। ऐसे ही 240, 240, इसमें 240 का उपयोग किया है आपने। ऐसे ही बाकी 4005, 10590, तो इसमें सिर्फ यही अंक आएंगे 0 से 9 तक। तो ये सिस्टम हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की तरफ। यानी कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि 41, ये आपको दे रखी है डेसिमल में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी कि बेस 2 में आप इसको कन्वर्ट करें। तो इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से बनाएंगे जिसमें कि 41 को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमको 41 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद हम लोग इस 41 में 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये गया 20 बार, यानी कि 20, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। और बचा 1, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस 20 में 20 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे, तो वो जाएगा आपका 10 बार। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, 0 लिख देंगे अब यहाँ पर। उसके बाद ये जो 10 है इसमें फिर से 2 का भाग लगाएंगे, तो 5 बार गया, बचा 0। तो फिर से है इस 5 में 2 का भाग 2 बार, बचा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 2 में फिर से 2 का भाग गया 1 बार, बचा 0। अब 1 में 2 का भाग नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 1 से, और ये जो पीछे वाला जो पूरा पार्ट है इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, यानी कि ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, और ये फिर से 1। यानी कि आपकी ये जो संख्या आई ये आपकी बाइनरी में 41 के बराबर है। यानी कि आप 41 ब्रैकेट के बाहर डेसिमल 10, और इसको लिख सकते हैं 101001 बेस 2। तो आप इस तरह से कोई सी भी संख्या आपको मिल सकती है डेसिमल में। यहाँ पर 41 है, आपको 60 मिल सकता है, 200, 400, कुछ भी मिल सकती है। तो आप इस तरह से उसको 2 से डिवाइड कर करके, और जो बचता जाता है लास्ट में, उस हिसाब से पीछे से चलते हुए उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम
बाइनरी टू डेसिमल की तरफ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें हम एक संख्या लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 1 0 1 1 0। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, बेस 2, और ये किसके बराबर है 10 में, यानी कि डेसिमल में ये किसके बराबर है, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 5। जितने ये डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, उतना 2 to the power में ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कोएफिशिएंट है 0, उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड लास्ट जो है उसको सेकेंड लास्ट के साथ, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए एक एक कोएफिशिएंट को एक एक के साथ लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद आएगा 0 0 इंटू 2 to the power 3, उसके बाद आपका आएगा 1 1 इंटू 2 to the power 4, उसके बाद आएगा 1। तो आपने देखा ये जितने भी हैं ये संख्या, ये सब कोएफिशिएंट हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, और सबको 2 to the power पीछे से चलते हुए 0 to the power 0 1 2 3 4 5। और अगर ये 60 डिजिट की संख्या होगी तो आगे एक और लगा के 2 to the power 6 इंटू आगे वाला कोएफिशिएंट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको और जोड़ देते हैं। तो 2 to the power 5 यानी कि 32, 32 इंटू 1 यानी कि 32, प्लस 2 to the power 4 यानी कि 16, 16 इंटू 1 16, प्लस 2 to the power 3 8, 8 इंटू 0 0, प्लस 2 to the power 2 4, 1 इंटू 4 4, प्लस 2 प्लस 2 to the power 0 1, 1 इंटू 0 0। तो यहां पर हम इसको जोड़ लेते हैं, 32 प्लस 16 हो गया आपका 48, 48 और 2 हो गया आपका 50, 50 प्लस 4 हो गया आपका 54। तो ये जो संख्या आई आपकी 54, ये आपकी बाइनरी में जो ये संख्या है वो डेसिमल में 54 के बराबर है। तो इस तरह से आपको कोई सी भी संख्या दी जाए, अगर 2 डिजिट की संख्या होगी, मान लीजिए 2 डिजिट की संख्या है आपके पास, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे 2 to the power 0 इंटू लास्ट डिजिट, 2 to the power 1 इंटू पहला डिजिट, बस। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना 2 to the power की बढ़ती जाएगी, बस इतना ही आपको करना है और आपकी जो संख्या है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और नंबर सिस्टम में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।